Hey everyone, hi, welcome in another session of this very series. So just a moment, I'm logging in from my other device and then we will be starting the session. Those who are watching the recording of this very session, they can skip by 2-3 minutes, basically 2 minutes, because I'll be waiting for my students to join, and after that I'll start the session, like start the questioning and everything. Okay. Yeah, just a moment. Take. So basically, this is class number 10 of decoding assistant professor examinations via PYQs. We have already solved, question paper of Rajasthan Public Service Commission, which happened on the last in last December. Now we are doing the paper of Tamil Nadu Teachers Recruitment Board's Assistant Professor Examination. This also happened in December only. This is the second part of that very session. So in the last class, we did 25 questions. We will be doing 25 more in this one. Okay, so just give me like 1 minute. Let me inform in the group as well that we are live और फिर शुरू करते हैं. ठीक है, एक बार जो लोग भी live हैं एक बार बता दें हमें कि आपको ऑडियो ठीक है आपकी तरफ. Yeah. Okay. Cool. Just a moment. Huh? Okay. Radhe Radhe Kushi. Hello Shruti. Good evening. Hi Pratiksha, Pihu. Good evening Sachin. Hello Aishwarya. Good evening. आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपका फेस्टिवल भी अच्छा गया होगा. आज के सेशन में अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस लाइक 25 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, आई ऑल्सो हैव 2 अनाउंसमेंट्स. ठीक है, सो वो अनाउंसमेंट्स भी हैं आपके लिए. एक तो यूट्यूब सीरीज का है, नया यूट्यूब सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक अनाउंसमेंट वो है. दूसरा देयर इज वन अनदर अनाउंसमेंट एज वेल. उन दोनों के बारे में ही क्लास के एंड में हम लोग बात करेंगे. अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव वेटेड लॉन्ग इनफ. वी शुड स्टार्ट नाउ. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ऑफ दिस वेरी सेशन. आराम से पढ़िए और आराम से बताइए सर. ठीक. हाँ जी, आंसर दीजिए फटाफट सारे लोग. Enough. We have 2 statements here. कोमल, हाय, गुड इवनिंग. हेलो कविता जी, हाय, गुड इवनिंग. स्टेटमेंट 1 कह रहा है आपका कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडक के रचयिता थे. दूसरा कथन कह रहा है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक दशमलव प्रणाली है या थी जो प्रथम 9 संख्याओं के स्थानीय मान और शून्य के लिए बिंदु नामक चिन्ह के उपयोग पर आधारित थी. It's a good question. Among the most important discoveries of ancient Indian mathematicians was the decimal system of notation based on the place value of the first 9 numbers and the use of a symbol known as bindu for 0. So first statement, if we analyze, the first statement is correct. Okay, so Brahmagupta, he has written your Brahmasfut Siddhant and Khandak. Okay, Brahmasfut Siddhant, it was written around 628 AD and the later one was written around 665 AD. Okay, he's also most famous for being the first to give rules to compute the zero, how to use the zero in your counting and all. The second statement, ancient Indian mathematicians, they did develop the decimal place value system, and the concept of zero was initially represented by a dot, and in Sanskrit it was called as bindu. So दोनों ही statement आपके सही हैं. ठीक है, आपके ब्रह्मगुप्त की बात तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट.
ठीक है, जीरो के लिए बिंदु। इनफैक्ट आपको जो फर्स्ट जीरो, द अर्लीस्ट जीरो का एपिग्राफिक रेफरेंस भी मिल जाता है ग्वालियर से, ग्वालियर किले के पास ही है, तो वहां पे भी वो जीरो जो लिखा है वो बिंदु के रूप में ही लिखा है, लाइक इट्स जस्ट अ डॉट। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करें, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। ओके, his famous work is ब्रह्मोत्सुट सिद्धांत, जहां पे इन्होंने अल्जेब्राइक मैनिपुलेशन वगैरह के लिए अपनी लाइक थेरीज दी थी, फॉर्मूलाज दिया था, फर्स्ट रूल ऑफ जीरो, नेगेटिव नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, indeterminate equations, इन सब के बारे में इन्होंने बात किया। Sometimes he is also being considered as the one who described about the attractive force. In fact, he used the term gurutwakarshan, gravity, to describe why things fall. And in fact, he famously wrote, and there is this one quotation in his Brahmotsut Siddhant, जिसमें वो बोलते हैं कि bodies fall towards the earth as it is the nature of the earth to attract bodies, just as it is in the nature of water to flow. Okay, गुरुत्वाकर्षण। Obviously, Newton is known because जो आकर्षण था, जो वो like अर्थ जो अट्रैक्ट करती है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ, अगर वो हवा में है और वो नीचे आ रहा है, तो उसका वो फोर्स मेजर करने का इक्वेशन आपके न्यूटन ने दिया था, तो नो डाउट अबाउट इट, लाइक सो इसलिए ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल इक्वेशन के साथ वो जोड़े जाते हैं। हाउएवर, गुरुत्वाकर्षण टर्म जो आपका यूज किया गया वो आपके लाइक ब्रह्मोत्सुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 गाइस, हाँ बताइए। ध्यान से पढ़िए। Images of Buddhas and Bodhisattvas were favorite themes of Gandhara school, and it is sometimes referred to as Greco-Buddhist art. ठीक है, okay, Greek style, Hellenistic influence आपका है, and its primary focus was the iconographic representation of Buddha and Bodhisattva. ठीक है, reason statement बोल रहा है extant specimens of Mathura school include several seated Buddha images. Although there are variations, the Buddha usually sits cross-legged on a throne, Singhashan, with his right hand raised in Abhaya Mudra. ठीक है, so this is also correct. ठीक है, this is a classic hallmark of early Mathura Buddha figures. ठीक है, however, the relationship, if we try to establish, like assertion is making some this statement is making some assertion, and whether reason is able to explain it or not, so a clear-cut relation is not visible. That's why the answer for this, the more appropriate answer for this is B, है ना। चलिए next question number 58 please, statement based question, फटाफट। स्टेटमेंट 1 के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द मंडसौर इंस्क्रिप्शन refers to the migration and activities of a prosperous guild of silk weavers. ठीक है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, मंडसौर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में के टाइम पे है, एंड इट डिस्क्राइब्स द गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स, जो कि आपके सदर्न गुजरात या लता से सदर्न गुजरात का जो एरिया है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लता। ठीक है, सो लता से वो माइग्रेट किए थे टुवर्ड्स द मंडसौर। मंडसौर का जो नाम दिया गया है यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में वो दासपुर है। ओके, सो द एंशिएंट नेम ऑफ मंडसौर वाज दासपुर, डू नॉट फॉरगेट, इवन दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, it details their social activities including the construction of a magnificent temple dedicated to whom? Sun temple. Okay, now the second statement, inscription of Guptas and their contemporaries often mention the bhog and kar along with bhag. Kar was a generic term for taxes. Bhog, bhag and kar. ठीक है, भाग जो होता था वो राजा का एक कस्टमरी राइट होता था, कस्टमरी शेयर होता था। ठीक है, भाग जिसको हम बोल रहे हैं राजा का अधिकार है, कस्टमरी है, ठीक है, जो चला आ रहा है काफी टाइम से,
1/6 के करीब होता था। सही है स्टेटमेंट। कर जो है इट वाज अ जेनरिक टर्म फॉर टैक्सेस, ठीक है, और स्पेसिफिक पीरियोडिकल टैक्सेस लीवाइड ऑन विलेजेस। भोग ऑन द अदर hand, bhog was periodic offering of some material like offering of fruit, firewood, flowers provided by the villagers to the king। जैसे आज के समय में भोग आप अर्पित करते हैं ईश्वर को, वैसे ही राजा को जो समय समय पे एक आप पीरियोडिक कोई फ्रूट हुआ, फायरवुड हुआ, फ्लावर हुआ, वो आप जो ऑफरिंग दे रहे हैं उसको भोग बोला जा रहा है। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही आपके करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। ओके, ये आपके स्कॉलर्स एंशिएंट इंडियन एंड उनकी राइटिंग से है। इसका हिंदी करने का कोई मतलब नहीं था, हिंदी में भी यही नाम होता। दांडिन, ध्वन्यालोक, वामन, श्रृंगार प्रकाश, भोज, काव्य अलंकार सूत्र एंड आनंदवर्धन काव्यदर्श। मिलाइए, आप मिलान कीजिए फटाफट। आंसर पे चलें। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर दांडिन, दांडिन आपके लिखते हैं काव्यदर्श, पोएटिक्स का वर्क है ये, ठीक है, काव्यदर्श। इट वाज अ फंडामेंटल टेक्स्ट ऑन संस्कृत पोएटिक्स। वामन की बात करें तो वामन रोट काव्य अलंकार सूत्र। You know, he basically known for proposing the Riti school of poetry. Okay, you do not need to go in the detail about what is Riti and all, but yeah, Riti school of poetry. Bhoj की बात करें हम, Bhoj is is related to Shringar Prakash. It's an expansive work on poetics and dramaturgy. Then comes the last one, Anandavardhan. He wrote Dhanyavlok, the foundational text of suggestion theory or dhwani. Okay, dhwani. So this whole text is based on this suggestion theory or dhwani. ठीक है। देखिए ये जितने स्कॉलर्स दिए हैं इनमें से कुछ कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके जो वर्क्स हैं वो आपके गाहे बगाहे पूछ लिए जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। गाहे बगाहे का मतलब जानते हैं आपकी, अक्सर पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में। दांडिन, अपार्ट फ्रॉम काव्यदर्श, ही इज ऑल्सो नोन फॉर दश कुमार चरित, ठीक है, दश कुमार चरित is known for this very text as well, Das Kumar Charit. Okay, then we have there is one more text related to him. It was your Avanti Sundari Katha. ठीक, your द्विसंधान काव्य, द्विसंधान काव्य. It was an extraordinary poem and now lost. However, it has been mentioned in various texts which narrates the story of Ramayana and Mahabharata simultaneously. द्विसंधान काव्य, एक साथ दो कहानियां बता रहे हैं रामायण और महाभारत की। ठीक है। वामन की बात करें, काव्य अलंकार सूत्र लिखा है इन्होंने। इसके अलावा उन्होंने अपने ही वर्क पे एक कमेंट्री लिखी है, नाम है कवि प्रिय। ठीक है, कवि प्रिय लिख लीजिएगा ये सब। इसके अलावा वामन इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज द को ऑथर along with जयादित्य of famous commentary on Panini's grammar Kasika Vritti। ये पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ना, उस पे कमेंट्री है ये कसिका वृत्ति। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली लाइक वामन along with जयादित्य ही wrote it। भोज का हमारा जो श्रृंगार प्रकाश है, इसके अलावा भी इन्होंने एक मैसिव वर्क लिखा है संस्कृत ग्रामर और पोएटिक्स पे। आप लोग जानते हैं उसको, नाम है सरस्वती कंठ भरन।
सरस्वती कंठभरण. Okay, then we have another work of his, that is Samarangan Sutradhar. Okay. Samarangan सूत्रधार, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ टेक्स्ट है. समरंगर सूत्रधार. भोज के कुछ और भी वर्क हैं, ये स्टैरिक से समझ जाइएगा. तो भोज ने इसके अलावा एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क लिखा है जिसमें स्टेट क्राफ्ट, ज्वेलरी, शिप बिल्डिंग, इन सब के बारे में बताया है. नाम है युक्ति कल्पतरु. युक्ति कल्पतरु. ओके. देन देयर इज वन इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री जो पतंजलि की योग सूत्र पे इन्होंने लिखा है, उसका नाम है राजमार्तंड. इट्स अ लेसर नोन कॉमेंट्री, इसकी वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है. ठीक है. इसके अलावा रामायण को इन्होंने प्रोज एंड वर्स के मिक्स में लिखा है. जब प्रोज एंड वर्स का आप मिक्स करते हैं, यू नो कि पोएट्री का भी यूज कर रहे हैं और प्रोज का भी यूज कर रहे हैं, तो दैट स्टाइल इज कॉल्ड एज चंपू स्टाइल. ओके. सो वी हैव चंपू रामायण, इन्होंने लिखा है. ठीक है. चंपू रामायण, दिस वाज written by him. ओके. फर्दर हम बात करें आनंदवर्धन की. आनंदवर्धन ध्वनि स्कूल के, सजेशन स्कूल के पाइनियर थे. इन्होंने अपार्ट फ्रॉम ध्वन्यालोक, ओके, जो यहाँ पे हमने लिखा है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे. फॉर एग्जाम्पल एक मैसिव संस्कृत महाकाव्य इन्होंने लिखा अर्जुन पे फोकस्ड, उसका नाम था अर्जुन चरित. It was called as अर्जुन चरित. इसके अलावा देवी शतकम इन्होंने ही लिखा. देवी शतकम. Then it's a devotional poem consisting of 100 verses dedicated to goddess. Then your Vishmaban Leela. Okay. Vishmaban Leela. Okay, it's a Prakrit poem focusing on the erotic themes, Shringar. Tatwalok, it's a lost work on metaphysics and theology, but इन्हीं से जोड़ा जाता है वो. तत्वालोक, जैसे ध्वन्यालोक वैसे ही तत्वालोक. So these are the works. ठीक है. ये सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कि important हैं अदर एग्जामिनेशंस के लिए. That's why like I try to spend some time on them. ठीक है. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 60 प्लीज. दिस इज ऑल्सो द सेम ऑथर एंड ईयर वर्क. हलयुद्ध, मैत्रेय, रक्षित, रुद्रत, उद्भट. सम लेसर नोन स्कॉलर और वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, आंसर पे आइए. आंसर अगर हम देखें इसका तो आपका मिलान कर लेते हैं. हलयुद्ध ने लिखा अभिधन रत्नमाला. ठीक है. हलयुद्ध, he wrote अभिधन रत्नमाला. इट्स अ फेमस संस्कृत लेक्सिकन डिक्शनरी 10th सेंचुरी में हलयुद्ध के द्वारा लिखा गया. मैत्रेय रक्षित ने लिखा तंत्र प्रदीप. ठीक है. तंत्र प्रदीप. कसिक वृत्ति. ठीक है. कसिक वृत्ति जो अभी हमने आपको बताया, उस पे एक कमेंट्री लिखी गई न्यास. ठीक है. उस पे एक कमेंट्री लिखी गई जिसको न्यास बोला गया, वही है तंत्र प्रदीप. न्यास इज बेसिकली अ कमेंट्री. तंत्र प्रदीप इज अ कमेंट्री ऑन कसिक वृत्ति. ठीक है. कसिक वृत्ति के बारे में अभी हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए. रुद्रत, he wrote your काव्य अलंकार.
ओके 9th सेंचुरी टेक्स्ट है संस्कृत पोएटिक्स एंड एस्थेटिक्स पर। उद्भट इन्होंने लिखा अलंकार सार संग्रह या सार संग्रह, ठीक है, अलंकार सार संग्रह ये इनका लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 3412 है कहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 प्लीज। Which among the following ruler is not from the Somvansis dynasties? ठीक है, सोमवंशी, कभी कभी इनको पांडुवंशी भी बोला जाता है। दे रूल्ड मॉडर्न उड़ीसा, ठीक है, सोमवंशी और पांडुवंशी। मॉडर्न डे उड़ीसा जो है इन्होंने रूल किया था, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ बोथ, ठीक है, एंड between 9th and 12th centuries. तो rulers like Sevagupta, Janmejay the first, Yayati the first, okay, they are well known figures of this very dynasty. However, पर्वगुप्त जो है वो आपके इस डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करते थे। इन्होंने पर्वगुप्त ही वॉज अ रूलर ऑफ कश्मीर, जो कि 10th सेंचुरी की उत्पल डायनेस्टी के बाद एक छोटी सी डायनेस्टी के रूलर थे फॉर जस्ट 2 years। पर्वगुप्त he was not from the Somvanshi dynasty or Panduvanshi dynasty of Odisha। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल हिस्ट्री। रीजन कह रहा है क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी वाज बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टडी ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रॉपर पीरियडाइजेशन। ये आपको कर लेना चाहिए, हम लोग हिस्टोरियोग्राफी की क्लासेस में ये सब डिस्कस कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग शायद कर लो इसको, इतना टफ नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी ने यूनिवर्सल हिस्ट्री की बात किया। कोई भी आपकी रिलीजियस हिस्ट्री होगी अगर, तो यूनिवर्सल हिस्ट्री की बात करता है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो जो है, गॉड तो है, वो सबके हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के हैं, तो ये बात तो सही है। क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी वाज बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टडी, ठीक है। अब अगर आप रिलीजन के बेस्ड हिस्ट्री है तो उसमें आप क्रिटिकल या रैशनैलिटी या रीजन की बात नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज डिवाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंस की बात करते हैं आप, रैशनल या रीजन या क्रिटिकल की बात नहीं करते। पीरियडाइजेशन भी तो प्रॉपर नहीं ही है, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन में उस तरीके से नहीं है प्रॉपर, तो आर इज नॉट करेक्ट, हाउएवर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है, सी जो है वो करेक्ट है। सोमवंशी का हम थोड़ा सा बता दें आपका, इनका जो इनिशियली बोला जाता है कि ये रायपुर में एक एरिया है सीरपुर, ठीक है, वहां पे पुराना टेम्पल भी है जिसको साउथ कोसल भी बोला जाता है, वहां से आए थे ये लोग, ठीक है, ईस्टवर्ड मूव किए उड़ीसा की तरफ। इनकी पहली, इसीलिए इनिशियल कैपिटल सीरपुर ही माना जाता है। लेटर ये जो कैपिटल थी वो शिफ्ट किधर हुई, विनीतपुर, ओके, इट शिफ्टेड टू विनीतपुर एंड इवेंचुअली इट शिफ्टेड टू ययाति नगर, ठीक है, इट शिफ्टेड टू ययाति नगर, मॉडर्न डे जयपुर या नियर बाय एरियाज में, ओके। ये लोग जाने जाते हैं फॉर पेट्रनाइजिंग शैविज्म, ओके, शैविज्म को पेट्रनाइज किया था इन लोगों ने, ओके। जन्मेजय द फर्स्ट को माना जाता है कि ही वाज द फाउंडर एंड ही परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइस एज वेल। ययाति ने ही, ययाति नगर जो विनीतपुर है आपका, सॉरी जो आपका ययाति नगर या मॉडर्न डे जयपुर जो है, यहाँ पे कैपिटल या ये शहर इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर का है, इसी डायनेस्टी के ययाति द सेकंड हुए थे, उन्होंने बनवाया था, ओके। एंड इन्हीं के इसी डायनेस्टी से एक रूलर थे उद्योत केशरी, he saw the cultural top or zenith of the dynasty and completed many or major temple project। इसी टाइम पीरियड में ये जो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, देउल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब आप जो देखते हैं ना, लिंगराज टेम्पल हुआ, मुक्तेश्वर टेम्पल हुआ, राजा रानी टेम्पल हुआ, ये इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये सब विकसित हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 गाइस। Who made the following statement? I found Rome of clay, I leave it to you of marble. हाँ जी, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट ये आपके ऑगस्टस ने बोला है। ऑगस्टस, यू नो, most famous attribute to Augustus Caesar, the first Roman emperor, according to the historian. You know, there was one Suetonius. Okay, he says that Augustus boasted that he had inherited a city built of brick and left it built of marble, signifying his massive architectural and administrative transformation of Rome. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बिकॉज हिस्टोरियोग्राफी में हम एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो वहीं से क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़ने लगेगा इसके लिए आप। Herodotus defined his purpose in the opening of his work to preserve a memory of the deeds of the Greeks and barbarians. ठीक है, assertion. रीजन कह रहा है Herodotus also tried to give the cause of their fighting one another. बताइए। Yes, basically, like in the prologue of the histories, Herodotus explicitly states two main goals. ठीक है, प्रोलॉग में उन्होंने बताया, पहला टू रिकॉर्ड द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ बोथ ग्रीक्स एंड नॉन ग्रीक्स बारबेरियंस so they are not forgotten, and second to investigate the causes of the conflict between them. So the investigation of the cause, the reason is the methodology he uses to fulfill the purpose, fulfill the purpose like assertion of chronicling their history. Question number 65. Which one of the following books was not written by Roman historian Cornelius Tacitus? Germania, History, Agricola, all are the major surviving works of Tacitus. However, the Origins, it's not. Okay, Origin is written by Cato the Elder. Okay, Cato the Elder. This is a Latin work, and this is considered as the first history of Rome, which has been written in Latin. Okay, it's a first history of Rome, which is written in Latin. आप लोगों को बस एक याद ये दिलाना है, अथव 2.0 लाइव है, ठीक है, 3 महीने बचे हैं, आराम से आप सारा शादी जो भी है हो गई होगी, कुछ होने वाली होगी अगले हफ्ते में, तो सबको करके पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा जुट जाइए, और जो 3 महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए कि अगला ये जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन। ओके, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, बिल्कुल से भी किसी भी एरिया में आप कोताही मत बरतिए, किसी भी एरिया में आप ये मत सोचिए कि ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा हम लेजी हो जाएं, केयरलेस हो जाएं, अरे इससे तो हो जाएगा, अरे हम केवल PYQs कर लेंगे, उसी से हो जाएगा, सर तो करा ही रहे हैं वो सारा यूट्यूब पे एंड ऑल दैट। यस, PYQs हेल्प करेंगे, बट डू नॉट थिंक कि हाँ ठीक है वो JRF तक की जर्नी केवल वही अकेले आपको हेल्प करेंगे। तो डू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अथव 2.0 आपका लाइव है, कोर्सेज आपके चल रहे हैं अपनी स्पीड से, यू कैन ज्वाइन इट एज वेल। आपका होली ऑफर है लाइक ग्रुप में, आप अगर ओम्स हिस्ट्री ऐप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑफर दिख जाएगा। आई गेस आज ही इसका लास्ट डे है, सो लास्ट के 2-2.5 घंटे बचे हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। ओके, एंशिएंट इंडिया की क्लास चल रही है, हिस्टोरियोग्राफी की भी क्लास आपकी कल फिनिश हो जाएगी, और इसके साथ साथ बूस्टर सीरीज जो हम चला रहे हैं व्हाट इज हिस्ट्री कार का, इसका भी 5वें चैप्टर का जो मॉक है वो इस संडे को है, क्लास लाइव हो जाएगी कल, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 66 आप सबके लिए स्क्रीन पे रहा। चलिए, ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट और समथिंग यू वांट टू टॉक टू मी, ओम्स हिस्ट्री on Telegram, on Instagram, you'll find me. So just search Om's History, और आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं या
ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, I'll respond. Who holds the view that history is nothing but the biography of great men and that it is a record of human accomplishment, particularly of great souls? I have mentioned about him. He was the one who gave what we call as great man theory. Okay, इनके बारे में हमने आपको बताया है ग्रेट मैन थियरी हिस्टोरियोग्राफी की क्लास में ही. थॉमस कार्लाइल, a 19th century Scottish philosopher, he developed the great man theory. उनका famous quotation है ये कि the history of the world is but the biography of great men. ठीक है, history of the world is but the biography of great men. Thomas Carlyle. Question number 67. Who was the author of the book Tarikh al-Hind, which was written in Arabic language? तारिख अल हिंद के ऑथर कौन है, ये आप लोग जानते हैं फटाफट एवरीवन. तारिख अल हिंद के जो ऑथर हैं ही वाज अल बरूनी. ठीक है, इसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज ऑफ सोशियोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ 11th century इंडिया. इंडोलॉजिकल वर्क है. क्वेश्चन नंबर 68. दरोगाए पील जानते हैं आप लोग, दरोगाए पील, और कभी कभी दरोगाए फिल भी बोला जाता है. फील कौन था? क्वेश्चन नंबर 68 प्लीज. दरोगाए पील, he was the superintendent or officer in charge of the Royal Elephant, okay, or keeper of the Royal Elephant stables. Question number 69. Which ruler of medieval India used to listen to music every Friday after namaz? एक वर्क लिखा गया तारीख दाऊदी, ठीक है, अफगान रूलर्स के बारे में बात करते हुए. उन्होंने स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट किया है ये हैबिट किससे? सिकंदर लोदी से. ठीक है, सिकंदर लोदी से. Sikandar Lodi, he was a great patron of music and had several musical works, in fact, like this Lahjate Sikandar Shahi, इन्हीं के टाइम पीरियड में कंपाइल की गई. Lahjate Sikandar Shahi. Okay, it was compiled during his reign and it is recorded that he enjoyed listening to Shahnai and other music every Friday after prayers. Okay, so yes, so Sikandar Lodi, you know, the answer will be Sikandar Lodi. Chaliye, question number 70, please. The state should be based on the willing support of the governed, and that since the large majority of the people in India were Hindus, the state in India could not be truly Islamic state. Which Sultan of Delhi Sultanate put forward this view? हाँ जी, इसमें ना करेक्ट आंसर आपका जलालुद्दीन खिलजी. वो नमक वाला जब आएगा ना तब वो अल्तमश है. ठीक है, इसका आंसर आपका जलालुद्दीन खिलजी होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70. द आंसर इज Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji, he was known for his moderate and pragmatic views. He realized that since the vast majority of the population in India followed Hinduism, it was practically impossible to establish a purely Islamic state. He believed in a policy of tolerance and winning the willing support of the people. चलिए, अजर सन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71. Guru Gobind Singh laid the foundation of Khalsa at Anandpur Sahib in 1699. He initiated the custom of baptism, and those who accepted it were known as Khalsa and were given the appellation of Singhs. Question number 71.
इसका ऑप्शन ए ही होगा करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं। खालसा आपका आनंदपुर साहिब में 1699 में उन्होंने स्टैब्लिश किया, और खालसा में लाइक ठीक है, कस्टम ऑफ बैप्टिज्म वगैरह ये सारा आपका स्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली ऑन द डे ऑफ वैसाखी इन 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी गैदर्ड हिज फॉलोअर एट आनंदपुर साहिब एंड फॉर्मली स्टैब्लिश खालसा पंथ। अगर आप खालसा पंथ देखेंगे तो इट वाज इनिशिएटेड, अंडर दिस ही इनिशिएटेड द baptism and those who accepted it were known as Khalsa and were given the like Khalsa Sikh, okay, and they were given the appellation of Singhs. इसके बाद सिंह लगाने लग गए सब। He introduced this initiation ceremony जिसको खांडे दी पाहुल भी बोलते हैं, sorry, खांडे दी पाहुल, it's called that as well. Those initiated into this new order were called as the Khalsa and Singh for men, औरतों के लिए कौर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। हाँ, डिफरेंट भक्ति फिलोसफीज एंड द सेंट हु प्रोपाउंडेड इट से आपको मैच करना है। हाँ जी, हाँ देखिए, पुष्टि मार्ग जो है एक वैष्णवाइट सब ट्रेडिशन था जो कि भगवान कृष्ण के वर्शिप पे बेस्ड था। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग जो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू वल्लभाचार्य। ओके, वल्लभाचार्य से रिलेटेड है। एंड देन इसके बाद वरकरी संप्रदाय की बात करें, वरकरी संप्रदाय के नामदेव जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंट रहे हैं महाराष्ट्र धर्म ट्रेडिशन के। सतनामी जो ट्रेडिशन था पॉपुलरली आपके नॉर्दर्न इंडिया में फाउंड किया गया, एंड जगजीवन दास थे उन्होंने इसको फाउंड किया था। अलखनामी की बात करें, often linked to Dalit religious traditions in North India, अलखनामी लाल बेग। ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। राजस्व विभाग प्रमुख, सैन्य विभाग प्रमुख, शाही घराने के प्रभारी, खुफिया अधिकारी। इजी होना चाहिए ये आप सबके लिए। हाँ जी, सो जो आपके हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते थे उनको दीवाने आला बोला जाता था। ठीक है, व्हाट इज दीवाने आला। मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड आपके मुगल टाइम पीरियड में मीर बख्शी हो गए। इंपीरियल हाउस होल्ड के जो इसको बाद में कारखाना बोला गया, उससे पहले दीवाने बायूतत था। मीर सामा या खान सामा बोला जाता था। इंचार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है, वो यही थे। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर की बात करें तो बारिद। ठीक है, बारिद इंटेलिजेंस ऑफिसर, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1926 में फाउंड किया गया। MC Raja, very good. MC Raja, he was the first elected president of this specific association. ठीक है, prominent Dalit leader थे साउथ इंडिया से, initially collaborated with the Justice Party and later he represented the depressed classes in the Central Legislative Assembly. He moved towards the Congress politics. Question number 75, फटाफट।
Question number 75, please. Gandhiji's influence is not limited to those who agree with him or accept him as a national leader. It extends to those also who disagree with him and criticize him. But at a time of action and struggle, when India's freedom is at stake, they flock for him and look up to him as their inevitable leader. Who remarked above statements about Gandhi? This was, the situation with Mahatma Gandhi. Aura farming tha budao ka. It was Jawaharlal Nehru, Nehru often spoke about the magnetic and unifying power of Mahatma Gandhi, and he acknowledged this, that while many leaders, including he himself, Jawaharlal Nehru, not Vallabhbhai Patel, including he himself, had intellectual disagreements with Gandhi's methods, his moral authority, however, was so great that the nation instinctively turned to him during critical moments of the freedom struggle. Okay. So yeah, it was your Jawaharlal Nehru. Next, question number 76. In which of the following movements Mahatma Gandhi confessed failure of the movements and resigned his membership of the Congress and continued his work for the upliftment of the Harijans? हाँ जी, कौन से मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने आंदोलन की विफलता को स्वीकार किया और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर हरिजन उत्थान के लिए अपना कार्य जारी रखा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, 1934 में फॉर्मली ये रिजाइन कर जाते हैं एंड ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द दलित्स, द नेम ही गेव टू देम. 77 नंबर का क्वेश्चन. He who does not what is beneficial to the people of this country, be he a Mohammedan or an Englishman, is not alien. Alienness has to do with interest. Alienness is certainly not concerned with white or black skin or religion. He who does what? ये बहुत powerful and famous statement दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. ठीक है, once he got out of the jail, बाल गंगाधर तिलक, he said it. ठीक है, this whole statement. मैं 30 सेकेंड्स के लिए चुप हो जाता हूं, आप ये स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़िए. Cool. चलो, question number 78. The salvation of the capitalist does not lie in joining hands with the reactionary elements but in cooperating with those who through constitutional means want to change the government for a national one. Who gave the above remark? पूंजीपतियों का उद्धार प्रतिक्रियावादी तत्वों से हाथ मिलाने में नहीं बल्कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने वालों के साथ सहयोग करने में है. किसने बोला था ये? हाँ जी, महात्मा गांधी के सहयोगी रहे हैं जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला. इनफैक्ट 1934 में कांग्रेस से रिजाइन करके जीडी बिरला ने ही इनको जमीन दी थी दिल्ली में. ठीक है, अपना हरिजन सेवक संघ चलाने के लिए. वो जमीन इन्हीं की थी. ठीक है, चलिए. मैच द फॉलोइंग है डिफरेंट कमीशन प्लान एंड देयर रिकमेंडेशन. ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन 1948 का, सार्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन 1944 का, कुठारी एजुकेशन 1964 एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986. यू गाइस रीड इट इवन इन द पेपर 1 सब्जेक्ट एज वेल. बताइए फटाफट, ये इजी होना चाहिए आप सबके लिए. Question number 79, the second last question of the session. If you haven't liked the video, please hit the like button.
हाँ जी ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन की बात करें तो 12 साल की प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कोर्स के बारे में ये बताते हैं, ठीक है, 12 इयर्स ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कोर्स। इस राधा कृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दिस कमीशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसने 12 साल की स्कूलिंग को मैंडेटरी बताया, सजेस्ट किया बिफोर यूनिवर्सिटी एंट्री, ठीक है। देन सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 का जो आया था, इट asked for establishment of elementary schools and high schools, ठीक है। It was a comprehensive scheme Second World War के बाद का for the educational development, aiming to create a system which was similar to the UK, ठीक है। UK का ही सिस्टम था ये, elementary and high school। फिर कोठारी एजुकेशन कमीशन की बात करें 1964 का, it talked about the vocationalization of secondary education, ठीक है। इसी ने आपके ये 10+2+3 की बात की है, 10+2+3, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दिस इज दिस ओनली। देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1986 की आती है, इसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कही थी, हाँ, universalization of elementary education. This policy focused on the operation blackboard and achieving universal access to primary education, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन उसके लिए ये था। अभी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। NEP 2020 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इस लेवल पे, जो टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे आप स्कूल लेवल का हो एग्जामिनेशन, चाहे आपका यूनिवर्सिटी लेवल का हो, इवन नेट का हो, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 29 2020 को ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लान आपका लागू हुआ, ठीक है। इट रिप्लेस दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986, 34 साल बाद। This policy was, the aim was to create a more holistic, flexible and multidisciplinary educational system, ठीक है। इसमें जो नया स्कूलिंग स्ट्रक्चर आपका इशू किया गया वो क्या है, 5+3+3+4 है ना, 5+3+3+4, वो 10+2 को हटा के इसमें 5 साल एज 3 से लेके 8 तक ये प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के हैं, ठीक है, क्लास 2 तक। इट फोकसेज ऑन द प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। देन प्रिपरेटरी स्टेज होगा आपका 3 साल, 8 से 11 साल, like classes 3 to 5. Okay, it introduces more structured but interactive classroom learning in subjects like language, math and science. Then your middle stage 3 years का जो है, age 11 से 14, class 6, 7 and 8, it focuses on experiential learning, in science, mathematics, arts and social sciences. After that, the 4 years program, age 14 to 18, that is class 9, 10, 11 and 12. Okay, it offers multidisciplinary study with no rigid separation between arts, commerce and science, ठीक है। So yes, इसमें की स्कूलिंग के बारे में बात किया गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए, एटलीस्ट 5वीं कक्षा तक, और प्रेफरेबली अंटिल 8वीं कक्षा तक। It also integrated from grade 6 onwards, कक्षा 6 के बाद, including a 10-day bagless period होना चाहिए for internship with local experts like carpenters और gardeners, उनके साथ grade 6 onwards, ठीक है। अगर ये अच्छे से लागू कर दिया जाए तो स्किल, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है 2020 onwards कि the youths they should move towards skill rather than just preparing for the government examinations, okay, because obviously the number of youths we have, the number of people we have, the government cannot accept or acclimatize everyone. That's why this skill is needed. Then your a shift from summative to formative assessment के बारे में बात किया गया। board exams for grades 10 and 12 they will be made easier by testing core competencies only and they will be held twice a year, ठीक है। देन परख की बात की गई, इट्स अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर स्टूडेंट इवैल्यूएशन। अब क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन का जो रिफॉर्म है इसके बारे में पता होना चाहिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 या 4 साल में। इट ऑफर वेरियस सर्टिफिकेशन, अ सर्टिफिकेट आफ्टर 1 year, अ डिप्लोमा आफ्टर 2 years, a bachelor's degree after 3 or 4 years with research, okay.
देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में आप जानते होंगे, एमफिल को खत्म कर दिया गया, टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज दे आर नाउ परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया, व्हाइल इंडियन आईआईटीज दे आल्सो आर authorized to set their campuses overseas. ठीक है, तो यस, अर्ली 2025 में आपका नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। इसके अलावा 2022 में एक यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम जिसको CUET बोला जा रहा है, वो आपका इशू किया गया। पॉलिसी ये भी एम करती है कि एक जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन पे वो 6% होना चाहिए। अभी क्या है, जो आपका एजुकेशन पे आपका जीडीपी का 6% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये गोल है। However, right now it is even less than 3%. Okay, less than 3%। इसीलिए 8,000, 5,000 या 0 रुपए या कोई 37,000 में सब PhD कर रहे हो आप लोग, ठीक है। But the aim is 6%. Obviously, like allocation is a kind of a big issue. Anyway, चलिए, before doing the next question, let's talk about the first announcement. So there is this new series which I am starting on YouTube only. The series on historical research. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका होता है बच्चों का कि सर हिस्ट्री की रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है या कुछ अलग होती है क्या, साथ में रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाना चाहिए। ओके, different kind of research methodologies are there, qualitative, quantitative, heuristic operations are there in history. Okay, then we have how you state your problem, how you go in the literature review, how you create your questions, the research question, how you find the gap in it, how you justify your research proposal, and all these kind of things, they are there in the minds of the students who are even preparing for UGC NET examination। उसमें यूनिट 10 का पार्ट कुछ होता है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च में, थोड़ा बहुत कुछ पोर्शंस आपके हैं जो इसके थ्रू फिनिश होंगे, कवर हो जाएंगे। साथ में जो PhD के लिए रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, उसके लिए भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज। आपको संडे की ही क्लास चलेगी, आई गेस 3 या 4 क्लासेस में ये हिस्टोरिकल रिसर्च आपका फिनिश हो जाएगा। पहली क्लास आपकी 8 मार्च को होगी। क्लास जो होगी वो संडे को 9 बजे रात में at 9 PM we will be having this very class. Okay, this class will be on YouTube, ओम्स हिस्ट्री YouTube जो चैनल है उसी पे होगी, लाइव होगी, तो आप लोग लाइव ही देखिएगा। because once this class ends, ठीक है, and after it gets published, तो ये हम केवल मेंबर्स के लिए ही विजिबल ये रहेगा। तो आपको अगर ये क्लास एक्सेस करनी है तो इसको लाइव ही देखिएगा, ठीक है। एंड द फर्स्ट क्लास विल गो लाइव ऑन 8 मार्च at 9 PM, ठीक है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेशन का। क्वेश्चन नंबर 80, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? हाँ जी, करेक्ट है। बरीन्द्र कुमार घोष जो थे आपके, बरीन्द्र कुमार घोष, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ योर इंडिया हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस के मेंबर नहीं थे, ये फाउंडिंग मेंबर थे अनुशीलन समिति के। अलीपुर बॉम्ब केस में इनका नाम भी आया था। वीडी सावरकर मेंबर थे, इनफैक्ट इनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। लाला हरदयाल, ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंडिया हाउस सर्कल इन लंडन, later moved to the United States and founded गदर पार्टी। मदनलाल ढींगरा, ये भी इसके स्टूडेंट रहे हैं। बाद में 1909 में कर्जन वाइली का असैसिनेट भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। सो यस, इंडिया हाउस के मेंबर आपके बरीन्द्र कुमार घोष नहीं थे। इंडिया हाउस एक इम्पॉर्टेंट संस्था थी, आप समझ सकते हैं कि ये हॉस्टल टाइप में था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इसको स्टैब्लिश किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में, ठीक है। इट वाज अ हॉस्टल बेसिकली, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को रहने की जगह देता था। वो जर्नलिस्ट भी थे,
इन्होंने एक सोसाइटी भी स्टैब्लिश की थी, नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसका आपका जर्नल था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट करके ये जर्नल था। तो इंडिया हाउस, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, इवन भीकाजी कामा, she was also related to it, ठीक है। so this was the last question। now जाते जाते एक और नई चीज आपको जो बतानी है वो ये है कि starting from 9th March, like from Monday, we have the medieval Indian history course. It will go live, okay। the classes will happen Monday to Friday at 7 p.m. so do attend, ठीक है। if you're not the part of अथर्व 2.0 बैच, you can join it। आप ओम्स हिस्ट्री के ऐप पे जाइए और वहां पे यू कैन गो फॉर अथर्व 2.0 बैच। अभी इस पे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, आज लास्ट डेट है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लीजिएगा। कल मिलते हैं हम लोग at 9 p.m. ओके, बाय बाय, टेक केयर।